Okay, good morning, students. We were doing exercise 12.2. So we have done now. Now I'm going to solve exercise 12.3. Before solving exercise 12.3, we must find what was the concept before exercise 12.3. So before starting solving exercise 12.3, it is a topic finding the value of an expressions and algebraic expressions. Dear students, we have studied about algebraic expressions, terms of algebraic expressions, and addition and subtraction also, like terms and unlike terms. So today we will find the value of algebraic expressions on the given value of variable. So let's start from an example. Find the value of an expressions. Topic is here. Topic finding value of an algebraic expressions. Okay, so dear students, first letter algebraic expressions is example. I have taken an example 2x plus 3. In this algebraic expressions, variable is x. So if you put the value of x in this expression, it will become in an arithmetical expression. So dear students, let x is equal to 1. At x is equal to 1, you have to find the value of 2x plus 3. So what will you do to find the value of 2x plus 3 at x is equal to 1? You have to just put the value of x is equal to 1 in these expressions. At the place of x, you have to put x is equal to 1. So this expression become 2 into 1 plus 3. Now by using BODMAS rule, you can simplify this. So by BODMAS rule, first you have to perform multiplication, then addition, then subtraction. So 2 into 1, 2 plus 3, 2 plus 3 is equal to what? 5. So here 5 is the value of this expression at x is equal to 1. Now choose x is equal to 0. So dear student, at x is equal to 0, what will be the value of 2x plus 3? 2x plus 3, put the value of x is equal to 0. Now, so 2 into 0 plus 3. ये क्या हो जाएगा? 2 into 0, 0 plus 3. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. So we can say that 3 is the value of this expression at x is equal to 0. Okay. Now example 7. Find the value of the following expressions for x is equal to 2. First one is x plus 4, 4x minus 3, 19 minus 5x square. Fifth क्या है? 100 minus 10x square. So dear student, start from example 7. एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस 4. इसकी वैल्यू किस पे फाइंड करनी है? x इक्वल टू 2 पर. तो आपको क्या करना होगा? x इक्वल टू 2 उस एक्सप्रेशन में जहां भी होगा वहां पे x इक्वल टू 2 पुट करोगे. ठीक है, देन सिंप्लीफाई करोगे. जैसे देखो आप ही का क्वेश्चन है, आपके बुक से एग्जाम्पल 7. एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट है. इसमें क्या करना है? x इक्वल टू 2 दिया हुआ है. x इक्वल टू 2 पर फॉलोइंग एक्सप्रेशन है, उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस 4. एट x इक्वल टू 2 पर x प्लस 4 की वैल्यू आपको बतानी है. तो क्या हो जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन. सो 2 प्लस 4
is equal to 6. So 6 is the value of this expression at x is equal to 2. हमने यहाँ पे क्या किया है, x की वैल्यू 2 को इसमें पुट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई कर लोगे जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो बाय यूजिंग बॉडमॉस रूल, सेम वे यू कैन परफॉर्म हियर। सो x is equal to 2 हमने पुट किया है, यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया किससे, 2 से, 2 + 4 हो गया इसलिए एक्सप्रेशन, ठीक है। सो 2 + 4 is equal to क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4x - 3 है। अब इसमें x is equal to 2 पुट करोगे आप, x is equal to 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, at x is equal to 2, यहाँ पे लिखोगे at x is equal to 2, 4x - 3 is equal to what, replace x by 2, so 4 into 2 - 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 8 - 3, 8 - 3 is equal to what, 5, 8 - 3 is equal to 5. So you can say x is equal to, at x is equal to this expression 4x - 3 has reduced to 5. Okay, next 19 थर्ड है इसका 7 एग्जांपल का, एग्जांपल 7 का थर्ड देखो, 19 - 5x स्क्वायर, 19 - 5x स्क्वायर में x वैल्यू क्या पुट करना आपको, थर्ड 19 - 5x स्क्वायर, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 19 - 5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, ओके। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ मींस 2 इंटू 2, यहाँ पे देखो 19 - 5 इंटू 4, सो 19 - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 - 20 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके, -1। ये क्या है, 19 - 20, अब आप कहोगे कि 19 से 20 को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो ये क्या है, आपको सिखाया गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उसमें आपको क्या बताया गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 19, इट विल गिव यू -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फोर्थ ऑफ एग्जांपल 7, 100 - 10x स्क्वायर। At the value of x is equal to 2, you are being asking here, find the value of expression 100 - 10x square at x is equal to 2. So you have to put the value of x is equal to 2 in this expression, then simplify by using Bodmos rule and exponent. So fourth 100 minus 10x square at x is equal to 2, ओके। सो क्या हो जाएगा, 100 minus 10 into 2, हमने क्या बोला आपको, x is equal to 2 पे इसकी वैल्यू बतानी, तो इसको क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे किससे, 2 से रिप्लेस कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा बेटा, 100 minus 10 into 4, now 100 minus 40, 100 minus 40, 100 minus 40 हो गया, 100 minus 40 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सो यू कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन हैव द वैल्यू 60 एट पॉइंट x इक्वल टू 2, ओके। ये क्या हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसकी वैल्यू बता दिया किस पर, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 60, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 8 है, वो भी इसी की तरह वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन n इक्वल टू -2, मींस यू आर डूइंग प्रैक्टिस हियर, यू आर डूइंग प्रैक्टिस हियर फॉर मोर एक्सप्रेशंस, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज गिवन, देन पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दैट एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई, ओके। सो एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट क्या है, 5n - 2, 5n - 2 में क्या करोगे, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ -2 दिया हुआ, तो इसमें n की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, समझ आया। n इक्वल टू क्या पुट करोगे, -2। अब देखो एग्जांपल 7, एग्जांपल 7 हो गया, एग्जांपल 8 करेंगे हम लोग। एग्जांपल 8, इसमें क्या दिया हुआ है, at n is equal to -2 find the value of following expressions. So first of 8, 5n - 2, 5n
2, इसकी वैल्यू बतानी है किस पर, n इक्वल टू -2 पर बतानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, n को किससे रिप्लेस कर दोगे, -2 से। उसके बाद क्या करोगे, बाय यूजिंग बॉडमॉस रूल इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5n इंटू -2 -2। ओके, सो 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 -2। ये आपको बताया गया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स है। इफ टू इंटीजर्स हैविंग डिफरेंट साइन देन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। जैसे 5 और -2 का मल्टीप्लीकेशन करना था तो क्या आ गया, -10 हो गया, -10 इंटू -2, तो -10 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12। ओके, सो क्या हो गया, ये हो गया -12। 5n -2 का क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, वैल्यू हो गई n इक्वल टू -2 पर, इसकी वैल्यू हो गई क्या, 5n -2 की वैल्यू हो गई -12 एट n इक्वल टू -2। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड ऑफ एग्जाम्पल 8 क्या है, देखो सेकेंड ऑफ एग्जाम्पल 8, 5n स्क्वायर प्लस 5n -2। ओके, अब क्या बताना है, इसको भी वैल्यू किसको बताना है, एट n इक्वल टू -2 पर। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, n को रिप्लेस कर दोगे बाई 2। सो 5 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 ओके। नाउ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, ये क्या मिलेगा, 5 इंटू -2 है, 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -10 -2। ओके, सो 20 -10 -2, तो 20 -12 क्या मिलेगा, ये 20 -12 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो 8 क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई एट n इक्वल टू -2 पर। ठीक है, तो हम लोग इस सारे क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना। वेरिएबल्स यहाँ पे कुछ और है, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू -2 है, यहाँ भी n इक्वल टू -2 दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन अलग है कुछ। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ओके, नाउ थर्ड ऑफ एग्जांपल 8 इज हियर, n क्यूब प्लस 5n क्यूब, n स्क्वायर प्लस 5n -2। n क्यूब का मतलब क्या हुआ कि n का n में कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, 3 टाइम्स n क्यूब का मतलब, तो 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट देखो सभी लोग, थर्ड ऑफ एग्जाम्पल 8, n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर, n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n -2 एट n इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो रिप्लेस n बाई -2 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू n स्क्वायर मीन्स -2 टू द पावर 2, ओके, प्लस 5 इंटू -2 ओके। नाउ -2 टू द पावर 3 मीन्स व्हाट, -8। आप ऐसा कर चुके हैं, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 प्लस 5 इंटू -2 टू द पावर 2, यहाँ पे इवन पावर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, -10 -2। अब तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, एक बार और लिखते हैं, -8 प्लस 20 -12। नाउ सिंप्लीफाई, -8 प्लस 20 क्या हो जाएगा, +12 -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0 एट n इक्वल टू -2, एट n इक्वल टू -2 द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे थे जिसमें क्या दिया हुआ था, जिसमें दिया हुआ था केवल और केवल एक वेरिएबल। अब आपको क्या मिल गया,
एग्जाम्पल 9 में क्या दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके वैल्यू दिया हुआ है, एक्सप्रेशंस दिए हुए, उसमें वैल्यू को पुट करना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इफ a is equal to 2 and b is equal to 1, then find the value of a plus b, then find the value of a plus b, okay. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल 9 को करने से पहले एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग छोटा सा। इफ a is equal to 1 and b is equal to 2, then find the value of a plus b, then find the value of a plus b. So dear student, put the value of a and b in this expression. At a you will write 1 and at b you will write 2. So 1 plus 2, ये क्या हो जाएगा 3. So a plus b इक्वल टू 3 हो गया, किस पे मिला, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 पर, ओके। हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ a plus b इक्वल टू 3 एट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 कैसे करोगे, सेम इसी तरह से a और b की वैल्यू दिया हुआ और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं दोनों वेरिएबल में, so you have to put the value of a and b in that expression, then simplify it, okay. example 9 का फर्स्ट, a is equal to something and b is equal to, a is equal to क्या दिया हुआ है, a is equal to 3 and b is equal to 2, a is equal to 3 and b is equal to 2. फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, a प्लस b की वैल्यू बतानी है। अब बताओ, a की वैल्यू दे दिया आपको, b की वैल्यू दे दिया, तो a प्लस b की वैल्यू बता नहीं पाओगे। a इक्वल टू क्या दिया हुआ 3, b इक्वल टू क्या दिया 2, तो पुट कर दो आप 3 प्लस 2, क्या हो जाएगा ये 5. नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है बताओ, सेकेंड एक्सप्रेशन इज हियर 7a माइनस 4b, 7a माइनस 4b, ओके। ये क्या करोगे आप, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2, इसमें पुट करो, फिर सिंप्लीफाई करो, 7 इंटू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू व्हाट 3 माइनस 4 इंटू b की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 8. अब इसमें क्या करोगे, 21 माइनस 8 हो गया, 21 माइनस 8 क्या होता है 13, क्या हो जाएगा 13. नेक्स्ट वन इज हियर थर्ड क्या दिया हुआ, थर्ड में है एग्जाम्पल 9 का थर्ड है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसको भी कर लो आप, थर्ड इधर कर लेते हैं, थर्ड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, value of a and b is given here, so put the value of a and b in this expression. A is equal to what 3, so 3 square plus 2 into 3 into b की वैल्यू क्या है 2 plus 2 square, okay, 9 plus देखो 2 into 3 into 2, so dear student 2 into 3 6 2 जा 12, so 2 into 2 क्या होगा 2 to the power 2 क्या हो जाएगा 2 into 2. अभी हमने आपको बताया इसका क्या मतलब होता है, 2 to the power 2 means 2 multiplied by itself, so 2 into 2 यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 4, so 9 plus 12 plus 4, 9 plus 12 क्या हो जाएगा 21 plus 4 25. So 25 क्या हो गया, 25 is the value of this expression, this algebraic expression at value a is equal to 3 and b is equal to 2, okay. Now next आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 9 का फोर्थ है। एग्जाम्पल 9 का फोर्थ में क्या दिया हुआ, a क्यूब माइनस v क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है, a क्यूब माइनस v क्यूब की वैल्यू बतानी है। a का वैल्यू दिया हुआ है, b का भी दिया हुआ है, बस उसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। फोर्थ है इसमें a क्यूब माइनस
बी क्यूब, सो ए की वैल्यू क्या है 3 टू द पावर 3 माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 टू द पावर 3, सो 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19, ये इसका आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब एट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2. Now we are on the exercise 12.3. In 12.3, find the value of following expressions if m is equal to 2. So it is very easy to find the value of following expressions at m is equal to minus 2. m is equal to 2, okay. So इसके फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ करेंगे, बाकी आप सभी लोग घर में करोगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्या है देखो, मैथ्स 7th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग expressions at m is equal to 2. फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट क्या है, एट m is equal to 2 पे वैल्यू बतानी है, ठीक है। m माइनस 2 दिया हुआ है, m माइनस 2 एट m माइनस 2, what will be the value of this expression, m is equal to 2 पर। तो इसमें क्या करोगे आप, m is equal to 2 पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें जस्ट पुट कर देना है। क्या करोगे आप, इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 क्या हो गया, एट m इक्वल 2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी m माइनस 2 की, ठीक है। m माइनस 2 की वैल्यू पूछ रहा है m इक्वल 2 पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि m को 2 से रिप्लेस कर रहा है, फिर एक्सप्रेशन जो मिलेगा आपको अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है बाय यूजिंग गॉड-वॉन्स रूल, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा एक्सप्रेशन में, ठीक है, विथ ऑपरेटर you can perform that operator, okay. Now second of first 3m minus 5, second क्या है, expression 3m minus 5 at m is equal to 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस कर दो m को किससे 2 से, तो 3 into 2 minus 5, now 6 minus 5 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, so 1 को आप क्या बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ 3m minus 5 at m is equal to 2, ओके। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसकी वैल्यू हमने बता दिया किस पर, m is equal to 2 पर। कैसे बताया बेटा, m को रिप्लेस कर दिया किससे 2 से, तो m की जगह पे आप 2 पुट करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 into m लिखा हुआ, तो 3 into 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस साइन, माइनस के बाद क्या लिखा हुआ 5, सो 3 into 2 का मतलब क्या हुआ 6, माइनस 5 है, सो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 3m minus 5 at m is equal to 2। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फोर्थ करूंगा, थर्ड आप अपने से करोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ फोर्थ ऑफ फर्स्ट करो, ठीक है। फोर्थ ऑफ फर्स्ट में एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 एट m इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप कैसे करोगे, m को 2 से रिप्लेस कर दोगे, जैसा हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में किया है। 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 माइनस 7, सो 3 इंटू वॉट, ये हो जाएगा 4 माइनस 7, ओके। सो 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 बाई गॉड-वॉन्स रूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सो 12 माइनस 4 माइनस 7
11 ये क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी एट m इक्वल टू 2 पर। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं m इक्वल टू 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ करो सभी लोग, फिफ्थ में क्या करोगे, फिफ्थ देखो, फिफ्थ ईयर इज ईयर 5m अपॉन 2 -4 है या फिर +4 है, साइन नहीं दिख रहा है, चलो मैं माइनस करके देखता हूं, ठीक है। 5m अपॉन 2 -4 m इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, m इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेनी है, ठीक है। m की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यह 5 इंटू 2 अपॉन 2 -4, नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया 1, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, 5 माइनस 4 क्या मिलेगा बेटा 1, तो इसका भी आंसर क्या हो गया 1 हो गया एट m इक्वल टू 2 पर, एट m इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 1, ठीक है। हमने क्या किया, फिर से देखो सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू बतानी है 5m अपॉन 2 -4 की वैल्यू बतानी है किस पर, m इक्वल टू 2 पर। ओके, तो अब आपको करना क्या है, m को 2 से रिप्लेस कर देना, मीन्स m के प्लेस पे क्या रखना है 2 को रखना है। तो इसको पढ़ोगे कल 5m का मतलब क्या हुआ 5 इंटू m लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे m को रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं कि 52 लिख दोगे, 5m का मतलब ही हुआ कि 5 इंटू m लिखा हुआ, 5 मल्टीप्लाइड बाई m लिखा हुआ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या रखना है, कीप इन माइंड दैट 5m मीन्स व्हाट 5 इंटू m मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई m, नॉट अगर आपको m को रिप्लेस करने के बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे 52 लिख दोगे, ठीक है। सो 5 इंटू 2 अपॉन 2 -4, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 5 इंटू 1, सो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 यहाँ -4 लिखा हुआ तो 5 -4 इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप सभी क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन ने यहाँ पे बोर्ड में सॉल्व कर दिया है। कोई भी डाउट होगा मेरे ऑनलाइन क्लास 9 o'clock पे मॉर्निंग में होती है, तो वहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज हियर एग्जांपल क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। सो डियर स्टूडेंट, एट इफ p is equal to -2 find the value of following expressions are, first one is here 4p plus 7, so 4p plus 7 को करेंगे यहाँ पे बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हुआ है, बस तो चेंज हो गया है, बहुत जगह पे क्या m था x था, ठीक है n था, अब यहाँ पे क्या हो गया वेरिएबल्स p है और कुछ एक्सप्रेशंस भी दिए हुए हैं, उनको उनकी वैल्यू उसमें फाइंड करनी है, और वो एक्सप्रेशंस किसमें है, किस वेरिएबल्स में है, सिंगल वेरिएबल p है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट p की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एट इफ बोल रहा है इफ p इज इक्वल टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4p plus 7, 4p plus 7। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब लिंक से, तब आपको क्या रखना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक और टेक्स्ट बुक पेन आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस केवल वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप मैथ्स की वीडियो देख रहे हो तो आपको तो निश्चित रूप से आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी, और बुक भी होनी चाहिए, ठीक है। जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ा रहे हैं वहां पे बोर्ड में मेंशन रहता है विद डेट, सो उसी डेट में वो एक्सरसाइज एक्सप्लेन की जाती है, तो वो वीडियो आप वहां पे देख रहे होगे। तो जो भी डाउट होता है उसको नोट भी करना है आपको, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में, लाइव क्लास में आपको पूछना होता है, ठीक है। सो अभी स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के पास बुक होनी चाहिए एक्सरसाइज 12.3, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिस्कस कर रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 4p plus 7, इसकी वैल्यू बतानी है एट वैल्यू ऑफ एट p इक्वल टू -2 पर, एट p इक्वल टू -2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, p को रिप्लेस कर देना, मीन्स p की जगह पे -2 रखना है। तो 4p का मतलब ये हुआ कि 4 इंटू p लिखा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 -2 लिख देंगे, तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 -2 plus 7 लिख दोगे, फिर आपको एक्सप्रेशन कुछ और हो जाएगा, उसकी वैल्यू कुछ और आएगी,
तो यहाँ पे इसका मतलब भी हुआ कि 4 इंटू पी, 4p का मतलब हुआ 4 इंटू पी। तो आप अगर p को रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, 4 इंटू -2 लिखोगे प्लस 7। ओके, नाउ 4 इंटू -2 ये आपको बता दिया गया है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। 4 इंटू -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगा। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसके साइन भी चेंज है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव कितना आएगा, -8 प्लस 7 यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। सो -8 प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके सेकंड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करना है, रिप्लेस कर लेना है, p के वैल्यू को वहां पे पुट कर लेना है, फिर जो भी अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिलेगा बाय यूजिंग बॉडमॉस रूल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशंस ऑन द एट द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।